صبح صبح بس ماں نے بولا کہ نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے. صبح میں کھانا کھائے تھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں, بس صبح کھانا اٹھا. نہیں کھائے؟ شام کو؟ شام کو بھی شاید نہیں کھایا تھا شام کو. آپ خود نہیں کھائے تھے کہ گھر والوں نے دیا نہیں؟ نہیں کھانا سب کو تھا, لیکن ان لوگوں نے شاید میں مطلب ایسے ماحول ہی تھا, ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ دل نہیں کیا کھانے دل نہیں کیا کہ میرے خیال نہیں. جن لوگوں نے میرے رب کو نہیں مان رہا ہے, جن لوگوں نے میرے رب نے پیدا کیا, اگر جس گھر میں ان کی یہ نہیں ہے تو یار اس گھر کا کھانا کیسے. پھر میں مجھے بولا نہیں تم نکل جاؤ. اچھا تو پھر میں نکل گیا. آپ کچھ لے کر نکلے تھے؟ کچھ بھی نہیں, صرف جو پہنا تھا وہی جیکٹ, جو جینس جو ہی پہنا تھا, جو پہنا تھا صرف وہی پہن کے؟ صرف جو پہنا تھا وہی نکل گیا, وہی پہن کے. جب ابراہیم بھائی کو ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, کچھ گاؤں سے کچھ دور تک دوڑائے بھی مارنے کے لیے کہ داڑھی چھیل دے مارے ان کو, تو وہاں سے بیچارے اس گاؤں میں قریب گاؤں میں 1-2 دن رہے. اس کے بعد میں پتہ کر کے ہمارے پاس چلے آئے. ہمارے پاس آئے تو لوگوں کا فون ہمارے پاس بھی آتا تھا کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیجئے, لیکن میں کہا کہ میں اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ سکتا ہوں, لیکن میں ابراہیم بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یا کہ کم سے کم جو ہے 5 لاکھ روپے کی لاگت اس میں ہے, 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ان کا گھر تیار ہونے میں. ماشاءاللہ کچھ بھائیوں نے مدد کیا, تقریباً نیو تک تیار ہو چکا ہے وہ. ہاں فوٹو بھیج دے رہا ہوں, آپ فوٹو میں دیکھ لیجئے. یہ فوٹو ہے, اس میں نیو وغیرہ تیار ہو چکا ہے. اب یہ کہ تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میرے ساتھ ابھی ہیں ابراہیم صاحب, جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور ان کا اصل نام جو ہے وہ سباس لودھ ہے. الحمدللہ کافی خوشی ہوئی سن کر جب ہمارے شیخ محترم صاحب نے جو ہے مجھے کمنٹ کیا فیس بک پر کہ ایسے سے بات ہے, ایک صاحب ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور کچھ ضروری باتیں ہیں, آئیے مل کر کرتے ہیں. تو آئیے جو ہے اپنے ابراہیم بھائی سے ہم لوگ کچھ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا, کیسے قبول کیا, کیا دقت اور پریشانی آئی, کیا کسی نے ان کو جو ہے جبراً اسلام قبول کروایا تھا یا انہوں نے اپنی رضامندی سے خود اپنے دل سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کسی زور دباؤ میں کسی کے کہنے پہ اسلام قبول نہیں کیا. میں نے اپنے مرضی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے اسلام کے اوپر جانا, ان کو اسٹڈی کیا, ان کو دیکھا, بہت سے علماء کرام کی باتیں سنی, ذہن میں بہت سے ایسے لوگوں کی تربیت ہوئی, ملی, انہوں نے بتایا. الحمدللہ میں نے کسی کے زور دباؤ میں اسلام نہیں قبول کیا, میں نے اپنے مرضی سے خود اسلام قبول کیا. الحمدللہ میں نے سعودی میں اسلام قبول کیا, پھر وہاں سے آیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ بھی کرائے, الحمدللہ وہاں پہ عمرہ بھی کیا میں نے. عمرہ بھی کر لیا ماشاء اللہ عمرہ بھی کیا. جب وہاں سے گھر آئے آپ تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ ہاں تو ان لوگوں نے ایسے ناراضگی تھی. ہاں ان لوگوں نے بہت ناراضگی تھی, ان لوگوں نے ایسے یعنی ان کو پہلے جانکاری ہو گئی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. گھر آ رہے تھے تو گھر آنے کی تو کوئی خوشی نہیں رہی ہوگی ان کو؟ نہیں ان کو تو ان کو یہ خوشی تھی کہ شاید وہ آئے گا تو یہاں پہ ویسے ہی ہو جائے گا. گھر آنے کے بعد کتنے دن تک رہے وہاں پہ گھر پہ؟ 12 گھنٹہ تقریباً. صرف 12 گھنٹہ؟ بس صرف رات بھر تھے وہاں. صرف رات بھر؟ بس صبح ہوئی, صبح بس ماں نے بولا کہ نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے. صبح میں کھانا کھائے تھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں, بس صبح کھانا نہیں کھائے. شام کو؟ شام کو بھی شاید نہیں کھایا تھا. شام کو آپ خود نہیں کھائے تھے کہ گھر والوں نے دیا نہیں؟ نہیں کھانا سب کو تھا, لیکن ان لوگوں نے شاید میں مطلب ایسے ماحول ہی تھا, ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ دل نہیں کیا کھانے, دل نہیں کیا کہ میرے خیال نہیں. جن لوگوں نے میرے رب کو نہیں مان رہا ہے, جن لوگوں نے میرے رب نے پیدا کیا, اگر جس گھر میں ان کی یہ نہیں ہے تو یار اس گھر کا کھانا کیسے. پھر ماں نے پھر بھی میرے دل میں کوئی نہیں دیکھا, ان لوگوں کو جگہ دیں گے رہنے کے لیے, میں کہیں دور جا کے رہ لوں گا. پھر اگر ماں باپ نے چاہا تو کہیں تو آپ پاس رہو, کہیں جا کے دور تھوڑا زمین لے لو کہیں رہو. تو پھر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا, ان لوگوں نے ڈائریکٹ انکار ہی کر دیا, نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے. آپ کی شادی ہو گئی تھی؟ میری شادی بھی ہو گئی تھی سب. کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے, ایک لڑکی تھی, ایک مطلب نہیں, میں جب سعودی سے آیا تو ایک لڑکی تھی. صرف ایک لڑکی؟ ہاں ایک لڑکی تھی. آیا تو پھر جب دوسرے دن گھر والوں نے آپ کی امی نے کہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ؟ میری ماں نے, میری امی نے کہا تھا. تو میرے والد تو نہیں تھے وہاں پہ. کچھ سامان لے کر آئے تھے سعودیہ سے گھر والوں کے لیے؟ سب سامان لے کے آئے تھے, سب تھا سامان. دیے تھے گھر والوں کو آپ؟ میں سب سامان گھر میں ہی تھا سب. اچھا. پھر انہوں نے مجھے بولا نہیں تم نکل جاؤ. اچھا.
तो फिर मैं निकल गया। आप कुछ लेकर निकले थे घर कुछ से? भी नहीं, सिर्फ जो पहना था वही जैकेट, जो जीन्स जो ही पहना था, जो सब पहना था सिर्फ वही पहन कर? सिर्फ जो पहना था वही निकल गया, वही पहन के। मैं बोला नहीं। कहाँ गए फिर? तो फिर गया, बाजू में गांव था, दोस्त लोगों की थी, हाँ, मुसलमान थे? हाँ अपने मुसलमान थे दोस्त अच्छा। लोग, तो उनके गांव पे गया, तो उन लोगों ने फिर ऐसे रखा। तो मेरे गांव वाले जो थे, मेरे घर वाले जो थे, मेरे वालिद, मेरे चाचा जो लोग थे, उन लोगों भी गया वहाँ पे मारने के लिए हमको। अच्छा। नहीं चलो उसको वहाँ लेके आए, बुला करके उसका दाढ़ी निकाल दें, ये वो करने। और आप दाढ़ी रख लिए थे पहले से? पहले से अच्छा, हम माशा। लोगों ने बोला फिर ऐसे ऐसे। मैं बोला नहीं, कुछ भी कर लो कर, ठीक है, ये मतलब अगर ये आप निकाल दोगे तो कोई बात नहीं, गला भी काट दोगे तो फिर मैं नहीं निकाल सकता इसको, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत है। क्योंकि मैं अब ये मौत तक जाएगी मेरी ये, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नतें हैं। क्योंकि जिसने, अब दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से मुझे मोहब्बत है, बस उनसे मोहब्बत है मेरे अल्लाह और रसूल, जिन्होंने तरीका बताया जीने का, एक जरिया बताया, एक मकसद बताया। हम किसी चीज के लिए कुछ भी काम करते हैं, एक मकसद, एक जरिया होता है जरिया होता है जी, कि हमें ये चीज हासिल हो जाए। तो हमने अपने नबी और अल्लाह की इताअत, अपने नबी की रसूल की सुन्नतें पे हमको चल करके मिलेगी वो कामयाबी। आज घर से आप निकल गए, मैं निकल गया घर से। तो घर से निकले हुए कितने साल हो गए? तो घर से निकले तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गए, घर से निकले। अच्छा। फिर मैंने घर पे, मतलब बात तो इसे होती थी, वालिदैन से, माँ से, सबसे बात अभी भी होती है, कॉल उठाते, बातचीत होती है, बस उनकी यही कहना है तुम वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। मैं बोला नहीं, इस चीज़ के लिए मेरा रब मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस चीज़ को जानता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था मेरा रब कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरा रब कौन है, मुझे किसने पैदा किया। यहाँ तो हजारों रब हैं, लेकिन जिसने मुझे रास्ता दिखाया, अब शायद मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मेरे रब ने मुझे इबादत करने लायक मुझे अपने सामने खड़ा करेगा। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला ने लोगों को क्या चुन चुन के, इस्लाम की दौलत दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। बहुत, मैं अपने आप को कभी कभी तन्हा होता तो मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला काश अगर तूने ये रास्ता नहीं बताया तो मैं कहाँ होता आज। मेरे पास बेशक अगर दुनिया की हजारों दौलत होती, लेकिन अगर तू नहीं होता तो फिर मैं क्या करता। अभी फिलहाल आप कहाँ पे रहते हैं? तो अभी फिलहाल मैं अपने दोस्त के यहाँ रहता हूँ। कोई नौकरी करते हैं? नहीं, अभी फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ। तो मतलब दोस्त आपके, मतलब ये कब से बने? वो मेरा दोस्त, मैं सऊदी, हम लोग दोस्त ही यहीं साथ ही से गए थे। अच्छा, साथ ही गए थे? हाँ, हम लोग दोस्त साथ ही में हंस गए थे, वीसा सब कई लोग थे, 4 ग्रुप था। हाँ। हम लोग साथ ही गए थे। तो अचानक ऐसे वो अल्लाह की क्या करम थी, हम दोनों दोस्त एक ही साथ पड़ गए। अच्छा। मैं मर्चवार के थे और वो यहाँ के थे। हाँ। नेपाल, मतलब यहाँ अंदर के थे। यानी इस वक्त जो है आप उनके घर में रहते हैं? उनके घर में रहते हैं, उन्होंने उनके घर में रहते हैं। परेशानी तो नहीं उनको? नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं। कितने साल से? अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन अभी 1.5 साल से उनके घर में हूँ। 1.5 साल से उनके घर में? हाँ, उनके घर में 1.5 साल से हूँ। तो उन्होंने, उनके अब्बा ने मुझे जमीन दिए हैं, तकरीबन 9 धुर से, यानी 9.5 धुर दिए हैं। उनके अब्बा ने जमीन भी दी? जमीन भी दी है उनको अब्बा ने। हाँ, तो उन्होंने मुझे जमीन भी दी है। तो बोले बेटा मैं जमीन दे रहा हूँ, अल्लाह के राह में आपको मदद कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आप ऐसा करो इसको बनवा लो, लोगों से कह के मदद करके, लोभी जो भी अपने लोग हैं उससे मदद। तो अभी फिलहाल मेरा घर वही रेडी हो रहा है, अभी शायद कुर्सी भरा है, थोड़ा दीवार खड़ा है, बस अभी पूरी काम बाकी है। अभी मतलब जो है दोस्त के घर में रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते होंगे। कितने रूम आपको मिले हैं वहाँ पे रहने? हमको सिर्फ एक ही रूम मिला। एक रूम मिला है, वहाँ पे रहते हैं आप? उनकी वाइफ एक रूम में रहती है और एक में मैं रहता हूँ। आप रहते हैं, बस। काफी परेशानी होती होगी? नहीं, अल्लाह ताला मैं इब्राहिम साहब के उन दोस्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस अजीम कारनामे के बदले फिरदौस में जगह अता फरमाए कि उन्होंने एक मुसलमान भाई को उन्होंने जो है साथ दिया और 1.5 साल से अपने घर में रखा। यहाँ लोग, मेहमान कोई आता है घर में, एक दिन के लिए अगर कोई रखता है तो उसको परेशानी होती है। यहाँ 1.5 साल से अपने घर में रख रहे हैं और उन्होंने जमीन भी दी आपको। जमीन भी दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसका बदला अता फरमाए। तो यानी आपके पास जमीन है? जमीन 9 धुर जमीन है, उसमें आप घर बनवा रहे हैं? हाँ, माशाल्लाह। कितना बना अभी? तकरीबन दीवार थोड़ा खड़ा हुआ है। ये सब चंदा करके हुआ होगा? बस ये सब लोगों की, जो अल्लाह के राह में, जो उन्होंने, मेरे नेक बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे, अच्छे लोग हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया, तो काम चल रहा है शुरू। तो अभी फिलहाल इंशाल्लाह अभी काम रुक गया है, उसमें काम रुक गया है। क्यों? अभी फिलहाल उतना वो नहीं है, मेरी पैसा नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं, उनसे लोगों के तक बोलूं कि शायद इसकी हमको जरूरत है ये सब की। तो वही, जो भी मेरा भाई हो, जो भी मेरा दोस्त हो, शायद एक बात। यानी कब से काम रुका हुआ है? तकरीबन आज 1 आध हफ्ता हो गया रुके। 1 हफ्ता। तो जिस हिसाब से आप घर बनवा रहे हैं, मतलब जो है उसमें कितना खर्चा आ सकता है?
फिलहाल? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसमें छत डालें फिर उसके बाद में दीवार खड़ा करेंगे तकरीबन 4-5 लाख रुपया तो आ ही जाएगा कम से कम? कम से कम। कितने रूम तैयार हो रहे हैं उसमें? 2 रूम यानी 4 रूम हैं। 4 रूम 2 मिला रूम के? है, हाँ, एक किचन है और एक यानी ये वो है मेहमान के लिए। मेहमान के लिए हाँ, है। तो यानी 4-5 लाख रुपया कम से कम लग सकता है। कम से कम लग सकता है इसमें। उसको बनाया जाए, उसको छत डाला जाए, अच्छे से पूरा हो जाए तो 4-5 लाख रुपया लग सकता है, उसमें खर्चा आ सकता है। तो कुछ कहें आप तो हमारे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह से? हमारे भाई जो भी हों, जो हमारे लोग हों, जो अच्छे लोग हों, जिनको अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए दिए हैं, लोगों तक एक मदद पहुंचा सकते हैं, तो बेहतर है कि वो मेरे भाई जो भी हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मदद करने ताकि हर रास्ता मेरी आसान हो। अल्लाह ताला ने उन्होंने उनको दिया है तो लोगों तक ये सब बात मदद पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे भी मतलब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो भी बंदा इस्लाम कबूल करता है उनके सामने आप खड़े रहो डट करके, ताकि उनको कोई परेशानियाँ कोई दिक्कत ना आने पाए। तो आज मेरे भाई जो भी हों मदद करें ताकि मैं अपना रोजी रोटी चला सकूं, अपने बच्चे को मैं उनको मदरसा में तालीम दिला सकूं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो भी देखें कि हाँ इस्लाम ये है, ये हमारा दीन है, ये हमारा अच्छे से लोग हैं। तो आज हमको सबकी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग लाख मेरी मदद रुपया करें। कम से कम खर्चा आएगा और बच्चे भी हैं, तालीम दिलानी है उनको, कोई बेशक, नौकरी आपके पास है नहीं। बेशक। इस वक्त जो है आपका खाना पीना कैसे चलता है? बस ऐसे दोस्तों लोग कोई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर देते हैं, कोई चावल दे देते हैं, यानी कुछ भी कोई सब्जी ऐसे वगैरह कोई लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता है ऐसे वैसे अल्लाह ताला ने। आप कुछ 2 लफ्ज़ों में कुछ बयान कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब इब्राहिम भाई को इनके घर वालों ने घर से निकाल दिया, कुछ गांव से कुछ दूर तक दौड़ाए भी मारने के लिए कि दाढ़ी छील दे मारे इनको, तो वहाँ से बेचारे उस गांव में करीब गांव में 1-2 दिन रहे। उसके बाद में पता करके हमारे पास चले आए। तो हमारे पास आए तो लोगों का फ़ोन हमारे पास भी आता था कि आप उनका साथ छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहा कि मैं अपना गांव अपना इलाका छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं इब्राहिम भाई को नहीं छोड़ सकता हूं। ये अकेले हैं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इनकी मदद के लिए खड़ा किया, और मैं तभी से 2-2.5 साल 3 साल से मैं इनके साथ हूँ। मैं इनकी मदद के लिए लोगों से कहता भी हूँ और लोग करते भी हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है। दरअसल इस वक्त हमारे इब्राहिम साहब काफ़ी परेशान हैं और वो अपने मुसलमान भाइयों से कुछ हेल्प चाहते हैं, और एक मुसलमान होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इब्राहिम भाई साहब का साथ दें, जो इनकी परेशानियां हैं इनकी परेशानियों का हल निकालें, इनकी ज़रूरतों को पूरी करें। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम जो है 5 लाख रुपए की लागत इसमें है, 5 लाख रुपए का खर्चा है इनका घर तैयार होने में। माशाल्लाह कुछ भाइयों ने मदद किया, तकरीबन न्यू तक तैयार हो चुका है वो। हाँ, फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, आप फ़ोटो में देख लीजिए। ये फ़ोटो है, इसमें न्यू वगैरह तैयार हो चुका है। अब ये है कि तकरीबन 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पहले तो दूसरों तक पहुँचाइए, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, अपने मतलब ज़रिए से जहाँ तक पहुँचा सकते हैं सब लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि अगर कोई भाई मदद करना चाहते हैं तो वो मतलब कर सकें जो ताकत रखते हैं। और आपसे अपील करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी 2 रुपया, 4 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की राह में खर्च करें और हमारे इब्राहिम भाई साहब का साथ दें। इंशाअल्लाह आपका 1-1 रुपया क़यामत के दिन आपके लिए इंशाअल्लाह नेकियों का बाइस बनेगा और आपको इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। तो आपसे अपील है कि जितना भी आपसे ताकत है आपके पास, जितना भी हो सकता है आप भेजें। मैं अकाउंट नंबर इसके अंदर डाल रहा हूं और अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल रहा हूं कमेंट में। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए, आपको जो भी पैसा भेजना है आप मुझसे रब्ता करें पहले, उसके बाद आप पैसा डालें इंशाल्लाह अकाउंट में। इंशाल्लाह जो भी आप पैसा डालेंगे, जो भी आप भेजेंगे, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा और आप स्लिप नंबर भी डाल दीजिएगा उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इंशाल्लाह जब आप भेजेंगे पैसा और तो उस वक्त मैं इब्राहिम भाई को जब पैसा दूंगा इंशाल्लाह तो सारे प्रूफ के साथ इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ में भेज दूंगा वापस कि इब्राहिम भाई तक आपका दिया हुआ पैसा, आपका सदका व खैरात पहुंच चुका है। इसलिए आपसे इल्तमास करता हूं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इब्राहिम भाई की मदद कीजिए। और मैं अपने उलमा इकराम से भी कहना चाहता हूँ खुसूसन कि आप अगर कहीं पढ़ाते हैं
کہیں پر خطبہ دیتے ہیں تو اپنے خطبے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس بات کا اعلان کریں ابراہیم بھائی کے لیے آپ چندہ اکٹھا کریں. اور کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اللہ رب العالمین آپ سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے. جو آپ نے اللہ کے راستے میں ابھی تک صدقہ و خیرات کیا ہے اس کو قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.